Students, so this is the second part of this chapter, um, socialism in Europe and the Russian Revolution. So I told you in the previous part ki how after the French Revolution people started getting to know about the Protestant as a Protestant, and how they they started giving their ideology and from the differ group. Okay, and so today we'll discuss about the industrial society and social change. Now we will see the changes in society. Okay, society was changed in 19th century. In 19th century, society was changed, and there were social level and economic changes also. Social level socially वो changes आए, economic way पे भी changes आए. So it was a time when new cities came up, like working in new industries developed, regions developed, railway expanded, and industrial revolution occurred. Like, this is important. And then so industrial revolution having two sides of a coin. There were many problems also. ये develop हुए, but developed from the problems also, like long working hours, poor wages, unemployment, housing, sanitation problem. So liberals and radicals searched for the solution to these issues. वो चाहते थे कि इस इश्यू से क्या किया जाए, कम overcome किया जाए. So they were liberals and radicals themselves were often property owners and employees, like they were factory owners also, but they had problem of autocracy and conservatism established in Europe after 1815. क्योंकि 1815 के बाद, yes, government established in Europe. Okay, some nationalists were there. Liberals and radicals wanted revolutions to put an end the kind of governments established in Europe. Okay, so after that what happened, they talked to the nation as a nationalist. जो नेशनलिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, जो नेशन के लिए बोलते हैं. ओके, एंड अमंग द सिटीज इक्वालिटीज चाहते थे लिबरल्स, राइट. And for example, Italian nationalist Gypsy Mazzini, it is mentioned here, this portion, you can read it. Gypsy Mazzini an Italian nationalist जो कि with others to achieve this in Italy, nationalist elsewhere. So these are the nationalists जो अपनी nation के लिए बोलते हैं, right? And now next is the coming of socialism in Europe. Now we will discuss here the idea of socialism. कि idea of socialism क्या था, equality को लेकर के था. Perhaps by the mid 19th century in Europe, the idea of socialism was a well-known body of ideas. Okay, who followed these ideas came to known as socialist. Okay, suppose those who followed these ideas came to know as socialist. So here socialists were against private property. Socialists पूरी complete तरीके से they were against the private property, right, and saw it as root of all social ills of the time. According to socialist, ये क्या सोचते थे, they considered private property as the root of all problems, कि यही एक मेन प्रॉब्लम है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एक मेन प्रॉब्लम है जो कि एक रूट माना गया है. सो इन द सोसाइटी, वाई individuals owned the property and workers work under them. यहाँ पे क्या होता था, individuals own property that give employment. ठीक है, individuals owned means here people were doing work, workers were doing work, but इसका पूरा प्रॉफिट कौन लेके जाता था, ओनर्स. ओके, एंड बट दे वर कंसर्न ओनली कंसर्न एंड पर्सनल गेन एंड नॉट विद द फॉर देम, बिकॉज ये जो है इंडिविजुअली जो है इनको कोई प्रॉफिट दे दिया नहीं जाता था. तो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो किसको मिलता था, फैक्ट्री या फिर उस ओनर को मिलता था.
Okay, so here socialists wanted a society as a whole should control the property, right? So who would given the idea for change? बेसिक चेंजेस हैं इसमें, जैसे आइडिया है लाइक देर वर फोर फाउंडर होते हैं इसमें. वन वी कैन से वन पर्सन हु वाज दैट रॉबर्ट ओन. ओके, रॉबर्ट ओन. And the second person was Louis Blanc, and the third was Karl Marx, and fourth was Frederick Engels. So these were the four ideologists जिन्होंने जो है अपनी एक philosopher थे जिन्होंने अपनी एक ideology दी. Okay, so what was Robert Owen said? He made cooperative in England. Robert Owen, he made cooperative. Okay, he sought he made cooperative, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. ये यूएसए में है. तो उन्होंने एक कोऑपरेटिव, एक ऐसा ग्रुप बनाया इन यूएसए कि जिससे वो क्या करते थे, लोगों की हेल्प करते. सो थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव, सारे लोग साथ में कलेक्टिवली वर्क करेंगे एंड नो रिगार्ड टू कंट्रोल, बिकॉज पीपल वर्क टुगेदर. ठीक है, हर किसी को वर्क बांट दिया जाएगा, वर्क टुगेदर. तो यहाँ पे इनको किसी के कंट्रोल करने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ रॉबर्ट ओन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुइस ब्लैंक. सो लुइस ब्लैंक, ही वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस. तो वो क्या चाहते थे कि जो इनकरेज, उन्होंने इस कोऑपरेटिव जो ग्रुप है इसको इनकरेज किया. ओके, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज, उन्होंने इसे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज पे रिप्लेस कर दिया. लाइक दिस कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स. तो यहाँ पे कोऑपरेटिव तो था, बट व्हाट ही डिड, उसने उन काम को जो डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉफिट को भी आपस में उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने को कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. जिसका हार्ड वर्क है उसको ज़्यादा, और जिनका बहुत वीक वर्क है उनको, ईजी वर्क है उनको लो वेजेस. ओके, एंड द नेक्स्ट पर्सन वॉज कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स एंड फेडरिक एंजल्स ने क्या किया, दे बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन. दे बिलीव्ड ऑन इट कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो उसे क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए. ठीक है, एंड व्हाट ही सेड कि यहाँ पे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल ने क्या ऐड किया था कि इन देयर आइडिया दे सेड इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर कैपिटलिस्ट, राइट. एंड कैपिटलिस्ट आइडिया मीन्स ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल. ओनर जो है वो इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल मीन्स इन्वेस्ट करेगा अपनी मनी in factories, and profit was produced by workers because workers are doing hard work done by workers, but पूरा जो प्रॉफिट है ओनर के हैंड में चला जाता है. सो कार्ल मार्क्स सेड इट इज टोटली रॉन्ग. इन प्रेजेंट वी कैन सी कैपिटल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, तो प्रॉफिट इन वर्कर्स, क्योंकि क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट को वर्कर्स के बीच में, राइट, एज अ सैलरी, एज अ वेजेस. सो कार्ल मार्क्स बिलीव दैट workers as required to free themselves from capitalist exploitation. Workers had to contract a radically socialist society. So how? By overcome throwing rule of private property and controlling the property socially is equal communist society. ठीक है, कैपिटलिस्ट जो है वो कम्युनिटी सोसाइटी बनाती है. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का ये आइडिया था कि वो क्या करे, उस प्रॉफिट को जो है वो क्या किया जाए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ठीक है, सो दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स. So next is support for socialism. So what happened here, by the
70s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप. पूरी जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थी वो पूरी जो यूरोप में है जो है स्प्रेड हो चुकी थी, राइट. एंड सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी. अब यहाँ पे क्या, जितने भी सोशलिस्ट थे दे फॉर्म्ड अ इंटरनेशनल बॉडी. व्हाट दे फॉर्म, they formed a international body which was named was second international. second, एक international होता है जो already था, this was the second international, right. So here similar associations were being formed everywhere in the world. ठीक है, जैसे जर्मनी हो गया, इंग्लैंड एंड फ्रांस. सो इन जर्मनी इंग्लैंड एंड फ्रांस, राइट. सो ये 3 कंट्रीज़ थी यूरोप के अंदर. सो जर्मनी वर्किंग क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. ओके, इट वाज वर्किंग एज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज़ कॉल्ड SDP, राइट. एंड सेकेंड इज़ इंग्लैंड. इंग्लैंड में क्या था, लेबर पार्टी. तो इसमें भी क्या था, सोशलिस्ट जो थी, एक जो पीपल वर देयर, जो एसोसिएशंस बने थे वो इनके साथ ऐड हो गए थे. लेबर पार्टी बाय 1905, राइट. एंड द फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी वाज देयर. तो इन पार्टीज़ में अब क्या होने लगे थे, लोग ज्वाइन होने लगे थे. दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग इन दिस पार्टीज़. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि workers, in these socialist association, they fight for better living and working condition. अब ये इन्होंने पार्टी क्यों बनाई, ताकि ये बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन के लिए लड़ पाए, फॉर स्पेशली फॉर वर्कर्स. ओके, दे सेट अप फंड्स टू ऑल आर पुअर, हेल्प मेंबर्स. ठीक है, सारे पुअर की मदद करने के लिए इन्होंने सेटअप किए फंड्स को भी. एंड दे डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स. जो प्रॉब्लम दे वर फेसिंग, कि उस वर्किंग आवर्स को ये लोग क्या करें, रिडक्ट करें. 15 to 18 आवर्स जो वर्क कर रहे थे उसको कम किया जाए. ओके, एंड दे वांटेड टू गिव देम राइट टू वोट ऑल्सो. These were the parties, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD भी इसे कहा जाता है, SDP भी इसे कहा जाता है. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इट. ओके, सो नेक्स्ट इज लेबर. जो इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी थी इन ब्रिटेन, एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. हावेवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप. ठीक है, जर्मनी नहीं बना पाई इसमें, रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हियर वी कैन सी, बट देयर आइडियाज़ डिड शेप द लेजिस्लेशन. लेकिन जो इनके आइडियाज़ थे वो एक शेप दे चुका था लेजिस्लेशन को. बट गवर्नमेंट कंटिन्यूड to be run by conservatives, liberals and radicals. Okay, so this was the core agenda. इसकी गवर्नमेंट के अंदर भी सोशलिस्ट की आइडिया की भी कि जो इन्फ्लुएंस कर पा रही थी. ठीक है, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ बिकॉज दे ऑलरेडी स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर एवरीथिंग, बिकॉज दे वर फेसिंग प्रॉब्लम. दे कैन सी द प्रॉब्लम्स. दोज वर्कर्स वर सफरिंग फ्रॉम दिस working hours and low wages, right, unemployment. So this is the second part, students. In the next part we'll discuss about the Russian Revolution. So thank you so much everyone.